Okay beta, this is clear to all of you? Yes, ma'am. Shall I proceed? Yes, ma'am. Okay. Yes, students, on that day what I have discussed about the 3 lobes of the pituitary gland. ठीक है, the third one is the middle lobe of the pituitary gland. What I said, that the anterior lobe of the pituitary gland, it is actually known as the adenohypophysis. It is known as adenohypophysis. And what is the name of the posterior lobe of the pituitary gland? It is known as neurohypophysis. And another thing that I have explained is that this adenohypophysis, which is actually the anterior lobe of the pituitary gland, it has how many portions? 2 portions. One is pars distalis and other is pars intermedia. So here pars intermedia is actually the middle lobe of the pituitary gland. पर वो कहते हैं कि this is very much embedded with the pars distalis. तो इसीलिए हम इसको एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नहीं देते हैं, हम इसको एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट ले लेते हैं. ठीक है. सो मेनी हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. वो सारे हार्मोन्स मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू लर्न दोस हार्मोन्स. दीस हार्मोन्स आर ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. Okay students, तो among these luteinizing hormone and follicle stimulating hormone जो है ना, इनको हम gonadotropins के अंदर ले लेते हैं. ठीक है, बिकॉज इनका मेन फंक्शन जो है गोनाड्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है. एंड वन एंड अदर हार्मोन दैट इज नोन एज प्रोलैक्टिन. तो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, इसको हम किसके फॉर्म में जानते हैं? तो कहते हैं कि 2 हार्मोन्स दैट आर रिलेटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन फीमेल. ठीक है, वन इज द ऑक्सीटोसिन. आपको क्या था? ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज द मिल्क इजेक्शन हार्मोन. एंड व्हाट इज प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन इज नोन एज द मिल्क सिक्रीशन हार्मोन. So when the mother they gave birth to the baby, after that the mammary glands of the mother they become active and they secrete milk after the delivery of the child, and that hormone is known as prolactin hormone. तो ये सब बच्चे याद रखेंगे. देखो ग्रोथ हार्मोन है तो नेम से ही पता है कि ग्रोथ हार्मोन है, तो इट इज डूइंग द फंक्शन ऑफ ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. एंड एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जो है वो भी बॉडी में स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक बेटे. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि द मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड पार्स इंटरमीडिया, इट प्रोड्यूस ओनली वन हार्मोन एंड दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ठीक है, MSH जिसको हम कहते हैं. और ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना आपकी स्किन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो समटाइम्स व्हेन यू सिट इन द सनलाइट फॉर सो मेनी आवर्स, ठीक है, what you observe that your complexion it becomes dark for some time, and when you come in shade तो आपका जो complexion होता है वो normal हो जाता है. तो in order to protect your body from the effect of the sunlight, a pigment secreted in your skin and that is known as melanin. तो melanocyte stimulating hormone जो है वो melanin जो pigment है उसको secrete करवाता है. ठीक बेटे. उसके बाद न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर हम बात करेंगे तो उसका एक ही पोर्शन है, that is known as pars nevrosa. And pars nevrosa जो है it releases 2 hormones, one is oxytocin and other is vasopressin. दोनों के फंक्शन सब बच्चों को मालूम है. ऑक्सीटोसिन जो है it is responsible for strong uterine contractions in the uterus of the mother during the delivery of the baby, and second one is vasopressin. So another name for the vasopressin is antidiuretic hormone. So it is responsible for the reabsorption of water and other essential nutrients in the distal convoluted tubule of your kidney. ओके बेटे. तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ना, उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके यूरिन को कंसेंट्रेटेड बनाने में. सभी बच्चे किडनी वाला चैप्टर कर चुके हैं तो सभी को मालूम है कि कैसे कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर एडेड इन इट. ठीक. तो उसमें देखो मेरे पास जो बुक है उसमें 1-2 डिजीज के बारे में ऐड किया हुआ है. आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ पे वो नहीं है. नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू व्हाट दैट. तो देखिए उसमें उन्होंने आगे ये बताया हुआ है कि अगर ओवर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो आपकी बॉडी में अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी. यू आर वेरी मच फेमिलियर फ्रॉम 10th क्लास. आई हैव यूज्ड दिस टर्म सो मेनी टाइम्स. जिजेंटिज्म. ठीक है, बंदे की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. एंड अनदर इज इफ लो सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज देयर, देन व्हाट हैपन? द स्टंटेड ग्रोथ ऑफ योर बॉडी टेक्स प्लेस. ठीक है, बंदा जो है वो छोटा रह जाता है, हाइट में बहुत ज्यादा बौना रह जाता है.
तो इट इज नोन एज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. तो ग्रोथ हार्मोन इज secreted by which gland? Pituitary gland. Okay students, another one is prolactin. So I have already discussed prolactin. It regulates the growth of the mammary glands and formation of milk in them after the delivery of the baby. All right, now thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone, it actually stimulates the synthesis and secretion of the thyroid hormones. ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स भी दो तरह के हैं. वन इज T3 एंड अनदर वन इज T4. तो जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे दोनों के फंक्शंस कैसे वेरी करते हैं. ओके बेटे, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कलेक्टिवली नोन एज गोनाडोट्रोपिन्स. एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? ऑन मेल एंड फीमेल्स दे आर परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस. तो मेल्स के अंदर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स which are collectively known as androgens. और 10th में भी आपको बताया था the chief androgen is known as testosterone in male. And beside this what it do? तो मेल्स के अंदर कहते हैं कि there is one another gonadotropin that is follicle stimulating hormone. So this follicle stimulating hormone, what it actually do? So this regulates the process of spermatogenesis. As the name itself indicates, spermatogenesis means formation of the sperms in the testis of the male. ठीक है. In class 12 you will going to study about the structure of the testis in detail. तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही आपको, बस आप इतना याद रखिए कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किनका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म्स का. और इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. तो ये कौन जो है स्टिमुलेट करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है. ओके बेटे, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नई नई टर्म्स यूज की गई हैं. मैंने 10th में कई बार बताई थी आपको. लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो फीमेल में क्या करता है? तो लुटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में इंड्यूस करता है द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, नेम से पता लग रहा है. ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल. ठीक है, फीमेल जो है उसकी ओवरी में से ओवम का रिलीज होने के बाद फुल्ली मैच्योर ओवम होता है ये, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं. एंड दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, नॉट ओनली इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन बट बिसाइड दिस दे आर आल्सो stimulate growth and development of the ovarian follicles. Okay, when you see the TS of the human ovary, what you find? There are so many follicles or eggs and they are present at various stages of their development. ठीक है, तो कहते हैं कि जब एक फीटस फीमेल जो है उसी का बर्थ होता है उस समय ओवरी के अंदर न्यूमरस स्टेजेस में एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और आफ्टर द स्टेज ऑफ पुबर्टी इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. तो ये फॉलिकल्स जो होते हैं, जो एग्स होते हैं, ये अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं. सबसे पहले इनकी प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज है, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल्स. और जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं देन दे आर नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल कि ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवम प्रेजेंट होता है. ठीक बेटे, तो जब वो कहते हैं कि ओवम जो है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के दौरान व्हेन इट गेट रिलीज, तो क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उसके सेंटर में ओवम प्रेजेंट है और आसपास काफी सारे सेल्स की लेयर है. तो जब ये ओवम उसमें से रिलीज हो जाता है तो जो बचे हुए रेमिनेंट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, ठीक है, वो क्या करते हैं? तो कहते हैं कि वो जो रेमिनेंट्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल की, वो एक येलो कलर का टिश्यू बनाते हैं एंड दैट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम. ठीक बेटे, तो न्यू बुक जो है मेरे पास, जो न्यू बुक है उसमें ग्राफियन फॉलिकल के साथ कॉर्पस लूटियम के बारे में भी बताया हुआ है. हो सकता है ये पीडीएफ जो है पुरानी बुक की हो तो इसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं है, पर आप अपनी बुक देखो, अगर आपकी बिल्कुल न्यू बुक है तो उसके अंदर कॉर्पस लूटियम के बारे में बताया गया है. तो ध्यान से सुनिए. कॉर्पस लूटियम इज एक्चुअली द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम एंड इट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ ए येलो कलर टिश्यू. ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है कि कॉर्पस लूटियम का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? मैंने 10th क्लास में भी ये वर्ड यूज किया था और आपको बताया था कि कॉर्पस लूटियम जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. बताइए, एनी आइडिया? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम? ओके, टेल मी. आई एम गिविंग यू वन क्लू. नेम द टू सेक्स हार्मोन्स दैट आर फाउंड इन ह्यूमन फीमेल. यस स्टूडेंट्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. यस बेटे, वेरी गुड. तो अगर ईस्ट्रोजन की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोजन जो है, ठीक है, वो मेन सेक्स हार्मोन है. पर प्रोजेस्टेरोन के बारे में मैंने आपको एक खास चीज बताई थी कि दैट दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन व्हिच इज द फीमेल सेकंड सेक्स हार्मोन
ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो याद रखिए कि कॉर्पस लूटियम जो है वो तब तक एक्टिव रहेगा अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम प्रेजेंट है। इफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन फीमेल, देन दिस मींस द कॉर्पस लूटियम मस्ट हैव टू बी डीजनरेट। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, और अगर वो कहता है कि fertilized ovum is there, then this corpus luteum do their job, and their job is the proliferation of the inner wall of the uterus, which is known as endometrium, for the implantation of the fertilized ovum। ठीक है बेटे, ये 12th क्लास के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखेंगे सभी बच्चे। बाकी सारे मैंने आपको बताए हुए हैं। MSH का फंक्शन है मेलानोसाइट, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स को स्टिमुलेट करना, एंड इन द रिलीज ऑफ मेलानिन पिगमेंट which regulates the pigmentation of your skin. All right, ऑक्सीटोसिन का भी मैंने आपको बताया कि it acts on the smooth muscles of our body। ठीक है, ह्यूमन फीमेल जो है उसकी बॉडी में यूट्रस जो है उसके स्मूथ मसल्स जो है उनके कॉन्ट्रैक्शन में ये इन्वॉल्व होता है, एंड इन फीमेल इट स्टिमुलेट्स अ वाइगोरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करेगा, पर मिल्क का इजेक्शन कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा। Vasopressin, तो vasopressin acts mainly at the kidney and stimulate reabsorption of water and electrolytes by the distal convoluted tubules, and thereby reducing loss of water through the urine, and that's why it is known as the anti-diuretic hormone, because it overcomes the situation of diuresis. Diuresis means more and more water if get lost through the urine, and that condition is known as a diuresis. So diuresis की condition को ये avoid करता है। ठीक बेटे, अब मेरी जो न्यू बुक है उसके अंदर एक और यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिजीज, एंड दैट इज नोन एज एक्रोमेगाली। ठीक है, द स्पेलिंग्स आर ACROMEGALY, एक्रोमेगाली। ठीक है, तो कहते हैं कि इफ देयर इज एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन देन इन एडल्ट इन द मिडल एज। ठीक है, तो एडल्ट में जाके मिडल एज के दौरान जो है डिसफिगरमेंट जो है वो होने लग जाता है। ठीक है, स्पेशली जो फेस के फीचर्स होते हैं उनका डिसफिगरमेंट हमें नजर आने लगता है, अब नॉर्मल से फेशियल फीचर्स होने लग जाते हैं, और इस डिजीज को एक्रोमेगाली कहते हैं। एंड इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं बाद में, और प्री मैच्योर डेथ हो जाती है पर्सन की अगर इसको टाइम पे चेक ना किया जाए। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है एक्रोमेगाली डिजीज के बारे में वो ये है कि काफी समय तक इट्स सिम्टम्स आर रिमेन्स हिडन। ठीक है, इसके सिम्टम्स हिडन फॉर्म में रहते हैं, तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेंजरस सिचुएशन। तो अगर सिम्टम जल्दी अपीयर हो जाते हैं देन इट्स डायग्नोसिस कैन बी डन एट अ वेरी अर्ली स्टेज। तो सिम्टम्स उसके तब दिखाई देते हैं जब फेस के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो एबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, और सीवियर स्टेजेस में इसमें पर्सन जो है उसकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये डिजीज जो है उसके जो लेटर जो उसके सिम्टम्स का अपीयर होना है वो एक क्रिटिकल कंडीशन जो है वो हो सकती है, और जब एक्सटर्नल फीचर्स में डिफॉर्मिटीज क्रिएट होती है ना तभी हम डिजीज का पता लगा सकते हैं। ओके बेटे, तो दिस वन मोर एब्स्ट्रैक्ट दैट इज एडेड इन द न्यू बुक। अगर आपकी बुक में है तो आप उसे अंडरलाइन कर लें, अगर आपकी बुक में नहीं है तो आई विल क्लिक द फोटोग्राफ एंड देन सेंड इट टू यू टू गो थ्रू दैट, तो एंड राइट इट ऑन योर पेज विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल। ठीक, because it is now there in the new book, so questions can be asked from that. All right बेटे, so आप देखिए उसके बाद उसने आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन जहां पे हमारा कंप्लीट हुआ है ना, उसके बाद भी एक छोटा सा पैराग्राफ न्यू बुक के अंदर है। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए पढ़ के सुना रही हूँ। उसके अंदर आपको बताया गया देयर इज वन अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज एंड दैट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ऑल ऑफ यू राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल डायबिटीज इंसिपिडस। The spelling is INSIPIDUS। ठीक है, क्या होता है इस डिजीज में? तो देखो डायबिटीज मिलियाटस, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि डायबिटीज मिलियाटस जो है उसमें आपके एक्सेसिव ग्लूकोज जो है उसका सिक्रीशन होता है यूरिन के जरिए, एंड इन लेटर स्टेजेस कीटोन बॉडीज से कम्स आउट थ्रू द यूरिन। ओके बेटे, बट दिस डायबिटीज इंसिपिडस इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मिलियाटस। तो हाउ दिस हैपन? तो कहते हैं कि इसमें आपकी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, तो वो मैं आपके लिए पढ़ के बता रही हूँ। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है अगर वो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली रिलीज नहीं होता या उसका जो रिलीज होना है वो अफेक्टेड रहता है,
तो इसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर। तो आपकी जो किडनी है, आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, डी आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो एक्स्ट्रा वाटर का जो है क्या नहीं कर पाती, रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। ठीक है बेटे, तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और जो वाटर होता है ना, वो आपकी बॉडी में से जो है रिलीज होने लग जाता है, तो काफी सारे वाटर का लॉस होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की सिचुएशन हो जाती है, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। मतलब जो डायूरेसिस वाली कंडीशन थी, उसको किडनी क्या करती थी, प्रिवेंट करती थी ना, पर यहाँ पे एडीएच हार्मोन अगर अच्छे से रिलीज नहीं होगा, तो सारा का सारा वाटर जो है प्लस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है, वो जो आपका डीसीटी वाला पार्ट है उसमें से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और आप एक डिजीज से सफर करेंगे, एंड दैट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये एक छोटी सी डिजीज और ऐड की गई है, तो 2 डिजीजेस यहाँ पे न्यू बुक में है, वन इज एक्रोमेगाली एंड अनदर वन इज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके बेटे, उसके बाद देखिए हम आ गए हैं पीनियल ग्लैंड पे। तो आपको बताया था डायग्राम में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में बहुत छोटा सा, ठीक है, डॉट लाइक ग्लैंड इज प्रेजेंट, एंड दैट इज नोन एज द पीनियल ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज दिस पीनियल ग्लैंड? ये पीनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है? तो दिस पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। ठीक है, फोरब्रेन की डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट है, एंड व्हाट दिस पीनियल ग्लैंड एक्चुअली सेक्रेट, so this pinion gland, it secretes a hormone that is known as melatonin. Okay bete, this melatonin, it play a very important type of function in your body, and that is a regulation of a 24-hour rhythm of your body. ठीक है, when I taught you in 10th standard, I have given one example, time to time मैं आपको एक example देती होती थी, याद है आपको? वो example ये था कि if somebody, ठीक है, कोई पर्सन है, इंडियन पर्सन है, वो अगर फॉरेन चला गया है, याद है, तो मैं आपको कहती थी वहां जाके उस पर्सन को ना, यहाँ पे अगर दिन होता था, वहां पे उस टाइम पे क्या होती है, रात है, नाइट टाइम है, तो वो पर्सन जो है वो सो नहीं पाता। ठीक बेटे, और कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद वो वहां का जो साइकिल है, पूरा बायोलॉजिकल रिदम है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाता है। तो जब वहां पे नाइट होगी, उस समय जो इंडियन यहाँ से गया होगा, या क्योंकि इंडिया में उस समय यहाँ पे क्या है, दिन है, तो वो पर्सन जो है वो सो नहीं सकेगा। ठीक, और जब वहां पे वो कहता है कि दिन का टाइम होगा, उसको नींद आएगी, तो ऐसा कुछ 14 से 15 दिनों के लिए उसके साथ हो सकता है, बट आफ्टर दैट इट अडेप्ट, इट्स बॉडी अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड देन कुछ मंथ के बाद जो है वो वहां का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। तो कहते हैं कि ये मेलाटोनिन पिगमेंट जो है वो आप, पिगमेंट नहीं, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, 24 आवर का जो आपका रिदम है बॉडी का, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको सेट करता है। ठीक है, तो कब आपने उठना है, ठीक है, व्हेन यू हैव टू स्लीप, व्हेन यू हैव टू वेक, ये सारी चीजें, बॉडी टेम्परेचर, ठीक, योर बॉडी मेंटेन आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपकी बॉडी के अंदर रहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस का। तो व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ विंटर या फिर समर सीजन है, तो योर बॉडी हैज द एबिलिटी टू अडैप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो बॉडी टेम्परेचर जो है इट इज आल्सो मेंटेन्ड। ठीक, beside this it is also playing some of the important functions. For example, it also influence metabolic activities in your body. ठीक है, so many metabolic reactions that are occurring in your body, तो वो भी इसकी वजह से होती हैं, उसमें अफेक्ट करता है ये पिगमेंटेशन जो है। ठीक है, स्किन का पिगमेंटेशन जो है, मेलानिन पिगमेंट जो है, उससे रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल के अंदर, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, अगर एबनॉर्मल सिक्रीशन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकता है फीमेल में। ठीक है, रेपिटेशन उसका प्रॉपर डेट पे नहीं होता है। और इसके अलावा कहता है कि डिफेंस रिलेटेड एबिलिटीज ऑफ द बॉडी दैट आर आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस particular hormone, that is melatonin, and it is secreted by pineal gland. So pineal gland, though it is a very small gland, but the hormone which it produce, melatonin, it play a very important functions in your body. तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी का सेट करता है, स्लीप एंड वेक साइकिल्स आपके डिसाइड करता है, बॉडी टेम्परेचर आपका कैसा रहेगा विंटर में, समर में, वो ये डिसाइड करेगा। वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उनको भी अफेक्ट कर सकता है इसका ओवर सिक्रीशन। पिगमेंटेशन स्किन में कैसी रहनी है, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा विंटर सीजन में। कई बार आपने देखा है कुछ लोग हाई एल्टीट्यूड्स में चले जाते हैं, ठीक, और हाई एल्टीट्यूड्स पे जाके उनकी स्किन जो है वो डार्क होने लग जाती है सर्दी की वजह से। तो पिगमेंटेशन जो है, मतलब स्किन जो है वो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉप नहीं कर पा रही। अगर आप ऐसे जगह के रहने वाले हैं, ठीक है, आप हिली एरियाज के रहने वाले हैं, तो उस पर्सन पे उसका इफेक्ट नहीं होगा।
और अगर यहाँ से कोई पंजाबी चला जाता है, हिमाचल जाके कुछ टाइम के लिए जाने लगता है या वहां जाके रह रहा है कुछ टाइम से, तो आप देखेंगे कुछ समय के लिए उसकी स्किन जो है उसमें डार्कनेस आ जाती है, क्योंकि वो कोल्ड कंडीशंस को फेस नहीं कर पा रहा, वो अडेप्टेड नहीं है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद उसकी स्किन जो है वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगी। ठीक बेटे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको डिले करवाता है, या फिर एक ही मंथ में एक से ज्यादा बार मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट हो सकता है, तो दैट कैन बी अ क्रिटिकल कंडीशन फॉर द फीमेल। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड कैपेबिलिटीज भी रखता है ये। तो उसके बाद देखो साइड में आपको जो डायग्राम नजर आ रहा है, वो डायग्राम जो है वो थायराइड ग्लैंड का है। ठीक बेटे, तो थायराइड ग्लैंड्स में आपको आपकी वोकल कॉर्ड्स नजर आ रही हैं, और उसके आसपास देयर इज वन पेयर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये आगे से पिक्चर ली गई है। ठीक बेटे, तो उसके बाद वो कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन ऑफ योर बॉडी। ठीक, तो उसी से मिलता जुलता उसका नेम है थायराइड ग्लैंड। तो इट हैज हाउ मेनी लोब्स? 2 लोब्स आर प्रेजेंट एंड दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ योर ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया की दोनों तरफ 2 लोब्स प्रेजेंट है और आपस में इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ए थिन फ्लैप, and that flap is made up of connective tissue, and what is the name of that flap? It is isthmus. Alright, उसके बाद देखिए थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर देखेंगे अगर आप, तो आपको खूब सारे सेल नजर आते हैं छोटे छोटे से। देखिए डायग्राम में, these cells are known as follicles. ठीक है, तो there are so many cells that are present inside the thyroid gland. These are known as follicles. And in follicles के बीच में क्या present है? Stromal tissue present है। ठीक है, stroma is a fluid-like substance that is surrounding these follicles. So each thyroid follicle, it is composed of so many other follicular cells. ठीक है, follicle थोड़े बड़े सेल हैं, उनके अंदर और छोटे छोटे सेल हैं जिनको follicular cells बोला गया है, and enclosing a cavity, और उन follicular cells के अंदर एक cavity present है। अब वो कहते हैं कि ये follicular cells जो हैं they synthesize 2 hormones. ठीक है, what are these hormones? One is known as T4 hormone and that is commonly known as thyroxine. But what is its full name? It is tetraiodothyronine. ऑलराइट बेटे, तो थायरॉक्सिन तो हमें 10th क्लास से पता है, अब इसका बड़ा नेम भी याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, एंड दैट इज tetraiodothyronine, and commonly it is known as thyroxine. And what is another one? Another one is T3, that is known as triiodothyronine. ठीक है, depending upon how many iodine groups they are attached with the chemical structure of the thyroxine, तो उसके अकॉर्डिंग उनको T3 T4 नेम दिया गया है। Alright students, see then what is given here, that iodine. ठीक है, we have repeated so many times that iodine it is essential. किसकी फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है? थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है आयोडीन आपकी डाइट के अंदर होना। ठीक बेटे, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन योर डाइट देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। सभी बच्चों को अच्छे से मालूम है डिजीज का नेम है गॉइटर, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। And what happened here? The enlargement of the thyroid glands it takes place, and the disease is called goiter. ठीक बेटे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है सिर्फ गोइटर ही उसके वजह से नहीं होता। हाइपोथायरॉयडिज्म इफ इट हैपेंस ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी देन इट आल्सो अफेक्ट द डेवलपिंग फीटस टू। ठीक बेटे, तो फीटस जो है वो इसकी केस में जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट and maturation of the growing baby and its parts. And what is the name of that disease? तो बेबी का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है, इस डिजीज को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। और इस तरह से जो बेबीज का बर्थ होता है वो बेबीज जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड हो सकती हैं, उनका मेंटल ग्रोथ नहीं हो सकता पूरे अच्छे तरीके से। इंटेलिजेंस पावर आईक्यू लेवल उसका बहुत ही लो होता है, लो इंटेलिजेंस कंडीशन रहती है। एफ नॉर्मल स्किन, ठीक है, स्किन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता अच्छे से, तो बेबी का बर्थ भी हो जाएगा, अभी भी स्किन बन रही होगी उसकी बॉडी में। ठीक है, डेफ और म्यूटिज्म वाली कंडीशन हो सकती है। तो बच्चे कैसे हो सकते हैं? गूंगे बहरे बच्चे जो है उनका बर्थ हो सकता है। ओके बेटे, इसके अलावा देखिए विमेन के अंदर अगर कंडीशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज देयर देन इट कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। ठीक है, एक ही मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होना चाहिए था, तो इस तरह की जो विमेन्स हैं उसमें एक से ज्यादा बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा, तो उससे विमेन जो है उसकी बॉडी में से एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, एंड दैट कंडीशन कैन बी अ क्रिटिकल कंडीशन फॉर द विमेन। ओके, इफ देयर इज अ थायराइड ऑफ द इफ देयर इज अ कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड देन व्हाट हैपन कि थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन जाती हैं, और ये नोड्यूल्स जो है बाद में साइज गेन करते रहते हैं, इनका डेवलपमेंट होता रहता है,
और उस वजह से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसमें से थायरोक्सिन हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होने लग जाता है। ठीक बेटे, तो ओवर सिक्रेशन होने की वजह से क्या होता है, ज्यादा लेवल में थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होंगे एंड द कंडीशन इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, एंड दिस हाइपरथायरॉयडिज्म इट एडवर्सली इफेक्ट ऑल द बॉडीली फंक्शन दैट आर अकरिंग इन योर बॉडी। आपके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं ना बॉडी के अंदर, जो वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो अफेक्ट होने लग जाते हैं इस तरह के पर्सन के अंदर। ठीक है, तो इसमें कई सारे सिम्टम्स भी इन पर्सन में नजर आते हैं। नॉर्मली वो एक थिन पर्सन होगा पर एकदम से फैट हो जाएगा, उसकी वॉइस पे भी असर पड़ता है इसका, आवाज में भी डिफरेंस आ जाते हैं, बाल जो है उसके हेयर्स जो है वो भी काफी ज्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय दीज थायराइड ग्लैंड्स एक्चुअली इन योर बॉडी। सो तो ये थायराइड ग्लैंड्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन योर बॉडी एंड सम ऑफ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो उसमें देखिए सबसे पहले इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, आपकी बॉडी में एक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको ये मेंटेन करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो उनको प्रॉपर तरीके से करवाने में ये हेल्प करता है। And secondly, these hormones it also helps in the process of red blood cell formation in your body, that is formation of the erythrocytes। ठीक है, आपकी बॉडी में आरबीसीज जो है उनका एक प्रॉपर अमाउंट मेंटेन करके रखता है। एंड इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन योर बॉडी। All the metabolic reactions which are involved in the metabolism of carbohydrate, proteins and fats, they gives you energy। ठीक, तो उसी की वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना। अगर इन रिएक्शंस में प्रॉब्लम आ जाए या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स का प्रॉपर ब्रेकडाउन ना हो तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी को जो मिल रही है वो कम हो जाएगी। ओके बेटे, इसके अलावा कहता है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो है उसको भी थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अगर थायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाए या लेसर अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाए तो दोनों की कंडीशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, तो वाटर का एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करते हैं आपकी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस यानी आयंस जो है उनके एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन रखते हैं। ठीक बेटे, फिर कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है उनको भी सिक्रीट करते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स को। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड and that is known as thyrocalcitonin। ठीक है, this thyrocalcitonin is very very important because it maintains the level of calcium in your blood। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का एक प्रॉपर लेवल मेंटेन करना क्यों जरूरी है, और अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो फिर बॉडी कैल्शियम कहाँ से लेगी? यस बेटे, हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो बॉडी की जो कैल्शियम से रिलेटेड नीड है वो बॉडी कैसे सेटिस्फाई करेगी? देखो, हार्मोन जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखता है उसका नेम है थायरोकैल्सिटोनिन और वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ठीक बेटे, तो इसका आंसर ये है कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी कैल्शियम आपकी बॉडी के उन ऑर्गन्स में से लेने लगेगी जो कैल्शियम में रिच हैं। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या ऐसी चीज प्रेजेंट है जो कैल्शियम में रिच है? वो आपके बोन्स हैं बेटे, बोन्स कैल्शियम एंड फास्फोरस में रिच हैं। ठीक, तो आपने एक ऐड अक्सर सुनी होगी, एक टीवी पे एक ऐड आती है, सभी बच्चों ने सुनी हुई है। तो उसमें एक विमेन जो है वो उसकी ऐड कर रही होती है, तो कहती है कि अब हमारी एज जो है वो 30 इयर्स हो गई है। ठीक है, और 30 इयर्स के बाद अब हमें हमारी बॉडी से क्या होगा, कैल्शियम का लॉस होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमें ये टैबलेट्स जो है वो शुरू करनी चाहिए। तो आफ्टर द स्टेज ऑफ द मेनोपॉज इन द विमेन्स व्हाट हैपन, the amount of calcium that is maintained in the blood of the human female it keeps on decreasing, and after the stage of menopause when the reproductive cycle this ceases in the human female what happen, the body it starts taking calcium from the bones। ठीक, और उसकी वजह से जब भी आपने बड़ी उम्र की जो एज की जो विमेन्स हैं उनको देखा है, जब भी वो विमेन्स जो हैं वो उठती बैठती हैं तो उनकी हड्डियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। ठीक बेटे, तो हड्डियां उनकी कमजोर होने शुरू हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो उसका कारण यही होता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और उसके बाद जो है बोन्स में से कैल्शियम लेने शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं वो हम आपको जब लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताया जाएगा उसके बारे में। ओके बेटे, तो आपने फिलहाल इस हार्मोन का नेम याद रखना है थायरोकैल्सिटोनिन।
जो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, और ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट वन, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, छोटा सा ही ग्लैंड है, तो मैं साथ ही करवा देती हूँ, आपको याद रहेगा. दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक बेटे. तो इसके अलावा ना न्यू बुक के अंदर वन पैराग्राफ और है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, जिन बच्चों के पास न्यू बुक है, उसमें एक आपको बताया हुआ है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के बारे में, एक आपको ग्रेव्स डिजीज के बारे में बताया हुआ है. तो मैं पैराथायराइड ग्लैंड की बात बताती हूँ क्या चीज है वो. ओके बेटे. तो कहते हैं कि ह्यूमंस जो है उसमें पैराथायराइड ग्लैंड्स कितने हैं? 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ठीक है, थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे कितने पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है? 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, एंड 1 पेयर ईच इन द 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसके कितने लोब्स थे? 2 लोब्स थे. तो हर एक लोब के अंदर 2 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, यानी टोटल कितने हो गए? 4 हो गए. ठीक बेटे. एंड दे प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोन का मतलब जो हार्मोन वो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोटीनेशियस है नेचर में, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज पैराथायराइड हार्मोन. And the secretion of this parathyroid hormone, it is regulated by circulating levels of calcium ions in the blood. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस जो सर्कुलेट कर हो रहे होते हैं ब्लड के अंदर, वो इस हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं. अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, इसका मतलब आपकी बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. ओके बेटे. तो अब देखिए, कहते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन इट आल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड. जब ये हार्मोन सिक्रीट हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है उसको और बढ़ाता है. एंड पीटीएच हार्मोन क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और उनमें से भी कैल्शियम जो है वो लेने की कोशिश करता है. पैराथायराइड हार्मोन इट आल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, किडनी की जो रीनल ट्यूब्यूल्स में आयंस होते हैं उसमें कैल्शियम आयंस भी होते हैं, तो कैल्शियम आयंस का अपटेक करता है ये. एंड बिसाइड दिस इट आल्सो इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम योर डाइजेस्टिव फूड. ठीक है, जो भी आप फूड लेते हैं उसमें से भी कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है. जहां भी उसको कैल्शियम मिल रहा है ना, वो लेते जा रहा है फटाफट. ठीक है, चाहे आपके किडनी में से ले रहा है, चाहे आपकी फूड में से ले रहा है, चाहे आपके बोन्स में से ले रहा है, और इस तरह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है. इसीलिए हम इसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन भी कहते हैं. इट इज नोन एज हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन. इट इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स. ठीक बेटे. और ऊपर देखो, अभी एक और हार्मोन आपने अभी अभी पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के केस में, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन. तो उस हार्मोन के साथ मिलकर ये क्या करता है? कैल्शियम बैलेंस जो है उसे बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है. ठीक है, तो इट इंक्रीजेस blood calcium levels, and along with the thyrocalcitonin it play a significant role in calcium balance in your body. ठीक बेटे, यहाँ तक करेंगे. कल मैं 2 डिजीजेस और डिस्कस करूंगी जो न्यू बुक में है, हो सकता है पुरानी बुक में ना हो. दिस इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एंड अनदर वन इज ग्रेव्स डिजीज. So if that diseases are not there in your book, I will click the photograph and send it to you so that you go through the account. ठीक है, later questions can be asked from these because they are the new topics. Okay बेटे.